মজুমদার, প্রকাশদা বসু, চুনিদা রায়চৌধুরী, বীরেনদা মিত্র, কিরণদা মুখার্জি, দেবী চক্রবর্তী, জয়ন্তদা বিশ্বাস, বৃন্দাবনদা বসাক, ভোলানাথ সরকার, গোপেনদা রায়, গুরুদাস ভাই ব্যানার্জি, অমর ভাই ঘোষ, সতীশদা দাস, নগেনদা বসু, উমাদা বাগচি, জিতেনদা রায়, যতীনদা দাস, তারকদা ব্যানার্জি, বিজয়দার মা, সুরমা মা, অমূল্যদার মা, মানদা মা, সুকুমারী মা, তপবনের শৈলমা, গৌরী মা, চারু মা, দুলালী মা প্রমুখ অনেকেই আছেন সেখানে। নতুন জায়গায় যে কেমন করে কাজে অগ্রসর হতে হয় সেই সম্বন্ধে কথা উঠল। শ্রী শ্রী ঠাকুর বললেন, প্রত্যেক জায়গায় ২-৪ জন পরোপকারী শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি থাকেন। এইসব বিশিষ্ট ব্যক্তির আতিথ্য যদি গ্রহণ করা যায় এবং তাদের ইন্টারেস্টেড অন্তঃসারী করে তুলে তাদের মাধ্যমে যদি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে ইন্ট্রোডিউসড পরিচিতি হওয়া যায়, তাহলে কাজের পক্ষে সুবিধা হয়। কারণ যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে তার কথার উপরে অনেকখানি গুরুত্ব দেয়। আর নিজের আচার আচরণ, চাল চলন, কথাবার্তা, এক কথায় সমগ্র ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধাশীল হওয়া চাই। যেন তোমাদের দেখে মানুষ একটা মধুর ও মনোহর আকর্ষণ বোধ করে। জনচিত্তে যতখানি শ্রদ্ধা ক্রিয়েট, সৃষ্টি ও মেনটেন রক্ষা করতে পারবে, ততই তোমাদের কাজের সয়েল, ভূমি স্টেডি, অনড় হবে। কথাবার্তা বলে শুধু সাময়িক শ্রদ্ধা সৃষ্টি করলে চলবে না, সেটাকে বজায় রাখা চাই। বলা মাফিক আচার আচরণ যদি চরিত্রগত না হয়, তাহলে কিন্তু কারোর প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা বেশি দিন বজায় থাকে না। সেদিক দিয়ে খুব সাবধান হতে হয়। মানুষের সাথে মেলামেশা ও কথাবার্তার ব্যাপারে পরিমাপ চাই। মাত্রা ছাড়িয়ে গেলে তার তখন আর আগ্রহ থাকে না। মানুষ যত আইডিয়াল, আদর্শে অ্যাক্টিভলি এনহ্যান্সড, সক্রিয়তার মুগ্ধ থাকে, উইথ অল অ্যালার্ট ইনকুইজিটিভনেস টু সেভ দ্য এনভায়রনমেন্ট, পরিবেশকে সেবা করার প্রকৃত সন্ধিৎসা নিয়ে তার চলন হয় তত ব্যালেন্সড ও রিসোর্সফুল, সাম্যসঙ্গত ও উদ্ভাবনামুখর। তার আলাপ আলোচনায় সেবাচার্যে লোক ব্যবহার, পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রয়োজনীয় অনুযায়ী নিত্য নতুন ভঙ্গিতে আত্মপ্রকাশ করে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠায় অভিসারে অগ্রসর হয়। আর লোকে তা যত দেখে ততই মুগ্ধ হয়ে যায়, ভাবে এর ভেতরে ঐশ্বর্য তো অফুরন্ত, অথচ এর এত নিরঙ্কার ও নিরভিমান। এই দেখে সত্তা সম্বর্ধনায় রসদ পাবার আশায় মানুষ তেড়ে যায়। তেড়ে তার কাছে সত্য সম্বন্ধে রসদদার যদি হতে পারে। গাছতলায় বসে থাকলেও লোক এসে ছেঁকে ধরবে। তোমাদের প্রকৃতি যদি হয়, প্রকৃতি তোমাদের জায়গা জয়গান করবে। ভাবনার কিছু নেই। নক অ্যান্ড ইট উইল বি ওপেন। টোকা দাও, খুলে যাবে। যীশুখ্রিস্ট কয়েকজন ছেলে জেলে মালো নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। কেষ্ট ঠাকুর প্রথম সঙ্গী সাথী ছিল, সব রাখাল বালক। ভক্তি, বিশ্বাস ও চরিত্রের সম্পদ থাকলেই সাধারণত অসাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। জয়গুরু। জয় গুরু। বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তমম, বন্দে পুরুষোত্তম। आज शोभानाथ चटर्जी दा बहुत सुंदर भाव से श्री श्री ठाकुर जी का आलोचना प्रसंग पंचम खंड जो है पाठ किए। हमारा वही ये था कि जो हिंदी में जितना भी पुस्तक है श्री श्री ठाकुर जी का पढ़ेंगे, उसको आलोचना करेंगे। बट अभी इस बार जो देवघर में गया था 31 दिसंबर और 1 जनवरी में, वहाँ पर श्री श्री बड़दा का
जन्मदिन उत्सव और रीति कॉन्फ्रेंस था। तो ये बातों में वहां पर मैं प्रीतमता को बोल रहा था जी हमारा तो 4th वॉल्यूम अभी हिंदी में खत्म हो रहा है, कुछ दिन के बाद हो जाएगा, तो सरस्वती हो नहीं तो इष्ट प्रसंग को पढ़ने के लिए मैं सोच रहा हूँ। तो मुझे वो गाइड किए जे नहीं, श्री श्री ठाकुर जी का जो आलोचना प्रसंग है वो पूरा 22-23 खंड है, उसको पूरा पढ़ना चाहिए। श्री श्री ठाकुर जी का पूरा जीवन उसमें है, क्या मैसेज वो दिए हैं वही उसी को तो जीवन में परिपालन करना है। तो तुम बंगाली सीखने के लिए प्रयास करो। बोले मैं तो थोड़ा सा पढ़ना अभी चालू किया हूँ सत्यानुष्ठान देख के। नहीं नहीं, दूसरे दादा लोग से जो भी रहते हैं बंगाली जानते हैं उनको पढ़ के फिर इसको हिंदी में आलोचना करो। तो मुझे अच्छा लगा, इंस्पायर लगा, जहाँ बंगाली वो कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज हमारा प्रथम दिन है और सोमनाथ दा बहुत सुंदर भाव से स्पष्ट भाव से पढ़े। और आज का आलोचना को आगे लेते के लिए मैं मनीष दा सोमनाथ दा दोनों को बोलता हूँ पहले उसको और एक बार ब्रीफिंग करे, फिर बाकी लोग इसको आलोचना करेंगे। सोमनाथ दा थोड़ा पहले आप आलोचना रखिए, फिर मनीष दा आलोचना करेंगे, बाकी लोग इसके बाद दादा माँ लोग हैं आलोचना करेंगे। सोमनाथ दा जय गुरु। सोमनाथ दा अवेलेबल नहीं हो रहे शायद। मनीष दा जय गुरु सोमनाथ जय गुरु हाँ जय गुरु। तो मतलब ये हो गया था, म्यूट हो गया था। मैं कर रहा हूँ आलोचना। तुमको कोड गला बुझपन ठाकुर जी इधर बोल रहे हैं, तो कभी नया जगह में जब जाते हैं ना, तो पहले एक्चुअली उधर जो लोग है उससे पहले भाव करना है, मतलब उससे मिलना जुलना है पहले, और उनके मिल के उनसे उनसे बहुत अच्छी तरह से जान पहचान बनाना है। फिर धीरे धीरे संपर्क बढ़ेगा, और लोगों का ना विश्वास उत्पादन करना है। मतलब अपना व्यवहार, अपना चाल चलन, ये सब से लोग को प्रभावित करना है, ताकि लोग देख के लगे कि ये विश्वासयोग्य आदमी है, और तभी लोग आपका बात मानेंगे, तभी आपका बात सुनेंगे। मतलब बेसिकली कैरेक्टर अगर अच्छा है, चाल चलन अच्छा है, वो सৎ प्रकृति का है, लोग अगर ये महसूस करे तो लोग उनका साथ खुलेगा, मिलेगा। और जो लोग ऐसा नहीं है तो लोग उनको विश्वास नहीं करते हैं, और उनका साथ ज़्यादा घुल मिल नहीं जाते। और जब तक लोग क्लोज नहीं हो जाएगा एक दूसरे का, तब तक वो मतलब ठाकुर का बात भी नहीं सुनेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, तो वो प्रयास विफल जाएगा। इसीलिए पहला कर्तव्य है लोगों से जान पहचान बढ़ाना, और अपना व्यवहार और अपना चाल चलन, अपना चरित्र से लोग को प्रभावित करना। इतना ही मैं समझा हूँ ये पढ़ के, बाकी मनीष दा बात कीजिए। बहुत सुंदर आलोचना किए हैं सोमनाथ दा। तो मैं अनुरोध करता हूँ मनीष दा को आलोचना रखने के लिए।
जय गुरु। वंदे लोकतिलकम सात्वतवार्ता विभूषणम अमर कृत्युत्सारणम प्रबुद्धम लोक जीवनम प्रणय प्रमत्त याग दीपनम वंदे जीवन जीवनम सत्पुरुषम। आज का जो ये बात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए है। मैं जो सोच रहा हूँ कि मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, तो क्या नहीं कर रहा हूँ, वही बात इसमें ठाकुर जी आज आज की जो बात है ये बोले हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं, प्रत्येक जगह में दो चार लोग परोपकारी श्रद्धेय व्यक्ति थाके नहीं। मतलब हर एक जगह में आप कहीं भी जाइए तो हर एक जगह में दो चार लोग तो ऐसे मिलेंगे जो जिनका परोपकारी स्वभाव है, वो इस तरह के व्यक्ति रहते हैं। तो ऐसे लोगों तक पहुंचना है। यही सब विशिष्ट व्यक्ति आतिथ्य यदि ग्रहण करा যায় এবং তাদের ইন্টারেস্টেড করে করে তুলে তাদের মধ্যে তাদের মাধ্যমে যদি স্থানীয় জনসাধারণের কাছে इंट्रोड्यूस हुआ जाए। ठाकुर जी बोल रहे कि ऐसे लोगों के माध्यम से उनको इंटरेस्टेड करना है और ऐसे लोगों के माध्यम से बाकी लोगों तक पहुंचना है। हुआ जाए তাহলে কাজের পক্ষে सुविधा হয়। तो ऐसे व्यक्तियों के माध्यम से और लोगों तक जब पहुंचा जाएगा तो काम में सुविधा होगा। कारण যাকে মানুষ শ্রদ্ধা করে তার কথার উপর অনেকখানি गुरुत्व দেয়। मतलब ठाकुर बोल रहे कि जिसको लोग श्रद्धा श्रद्धा करते हैं उनकी बात को वो उतना वेटेज देते हैं, उतना मतलब वो बात को वो मान करके चलते हैं। फिर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो आ रही है, আর নিজেদের আচার আচরণ চালচলন কথাবার্তা एक কথায় समग्र व्यक्तित्व श्रद्धोदीपी होवा चाहिए। मतलब जो हमारा आचार आचरण जो होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए कि किसी के मन में ठेस नहीं पहुंचे कि अरे ये आदमी बोलता एक है लेकिन करता कुछ और है। तो ये जो बात है ठाकुर जी बोल रहे इसके बहुत महत्व इस बात का है कि मेरा जो आचरण चाल चलन, मैं कुछ बोलता हूँ, मैं सबको अगर बोलता हूँ कि आप लोग ज्वाइन करो, लेकिन मैं कभी कभी बीच में ज्वाइन नहीं करता हूँ, सो जाता हूँ या आलस करता हूँ और मैं दूसरे को बोलता हूँ कि तुम ये चीज करो, मैं वो चीज नहीं करता हूँ। तो उसमें लोगों का जो भाव है वो टूट जाएगा। যেন তোমাদের দেখে মানুষ একটা মধুর ও मनोहर आकर्षण बोध करे। तो ये जो बात है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें हमारा जो चाल चलन है इसके ऊपर एक मैं रेस्ट्रिक्शन तो नहीं कहूंगा, ये हमारे कैरेक्टर में आना चाहिए कि मेरा जो आचार आचरण कैसा रहेगा। कि मतलब मैं तो यही बात समझता हूँ कि बोलना और चलना, जैसे ठाकुर जी बोले हैं सोचना बोलना और करना। तो मराठी में एक बात है कि बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले। तो जो जैसा बोलता है वैसा ही चलता भी है, वैसे ही करता भी है, उसका बर्ताव भी वैसे है। मतलब बोलना और करना, बोल कथनी और करनी, इसके बीच में अगर साम्य है तब तभी लोग श्रद्धा करेंगे। अगर ये साम्य नहीं दिखेगा दिखेगा तो लोग दूर हो जाएंगे। जन जनचित्ते
যতখানি শ্রদ্ধা ক্রিয়েট ও মেনটেন করতে পারবে ততই তোমাদের কাজের সয়েল स्टेडी होवे। मतलब हमारा ये जो जनचित्त मतलब लोगों के मन में जितना श्रद्धा क्रिएट और मेंटेन कर पाएंगे, क्रिएट भी कर पाएंगे, मेंटेन रख भी पाएंगे। क्रिएट करना एक बात, जैसे कोई आया व्यक्ति और उसने कुछ बोला है, अपनी बात रखी है, तो बहुत सारे लोग उससे प्रभावित हो सकते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करके चलना, वो जो इंटरेस्ट है, वो जो श्रद्धा लोगों के मन में उत्पन्न हुआ, उसको आप अगर मतलब हमेशा के लिए, अगर हमेशा के लिए उसको मेंटेन रखना है, तो हमारा जो चाल चलन है, चरित्र है, वो भी उस तरह का होना चाहिए, तभी वो मेंटेन भी रह पाएगा। तभी तुम्हारे काम का जो सॉइल है, मतलब भूमि, ये स्टेडी रख पाएंगे। भूमि का मतलब है सॉलिड ग्राउंड। मैं जो समझा कि सॉलिड ग्राउंड, नहीं तो क्या होगा, अगर आप उसको मेंटेन नहीं रख पाएंगे तो क्या होगा, जमीन खिसक जाना जिसको बोलते हैं, पैरों तले जमीन खिसक जाना, तो वही होता है कि वो आधार नहीं रहेगा, वो चीज स्ट्रांग नहीं रहेगा, रह पाएगी, तो हम खड़े कैसे होंगे। মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তার ব্যাপারে परिमाप चाहिए। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि लोगों के साथ मिलने जुलने के लिए और बातचीत करने में एक परिमाप मतलब एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। मात्रा ছাড়িয়ে গেলে তখন আর তার आग्रह থাকে না। मतलब ये अगर मात्रा नहीं रहेगा, उसमें कंटिन्यूटी नहीं रहेगा, उसमें वेटेज नहीं रहेगा, उसमें वो बात अगर नहीं रहेगी, तब लोगों के मन में वो जो श्रद्धा है उसको रख नहीं पाएंगे। मात्रा छाड़िए गेले, मात्रा मतलब वही जो स्टैंडर्ड है, वो अगर छोड़ देंगे तो फिर लोगों का आग्रह नहीं रहेगा। मानुष जो तो आइडियल आदर्शे एक्टिवली एनचैंटेड सक्रिय भावे मुग्ध থাকে with all alert inquisitiveness to serve the environment, তার চলন হয়ে তত ব্যালেন্সড অ্যান্ড রিসার্চফুল। তার আলাপ আলোচনা, সেবাচর্যা, লোক ব্যবহার, পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রয়োজন অনুযায়ী নিত্য নূতন সঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করে ইষ্টস্বার্থ প্রতিষ্ঠার अभिसारे अग्रसर है। मतलब ये सारा जो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आइडियल में, हमारे आदर्श में हम लोग जितना एक व्यक्ति एक्टिवली एंगेज्ड रहेगा, एक्टिवली एंचेंटेड रहेगा, एंचेंटेड का मतलब वो हमेशा मुग्ध रहेगा, वो ठाकुर जी के बातों में मुग्ध रहेगा। तो एक बात में मैं एक बोल सकता हूँ कि जहाँ गुड़ होता है वहां पर चींटी आती है, तो हमें अपने आप को गुड़ जैसा बनाना होगा। तो चींटी, चींटी का मतलब क्या है कि लोग आपके साथ आकर के जुड़ेंगे, तो हमारे अंदर जितना विश्वास रहेगा और उसके साथ में हमारा जब चाल चलन उस तरह का रहेगा, तब लोग आकर जुड़ेंगे। ठाकुर जी बोल रहे विथ ऑल अलर्ट इंक्विजिटिवनेस टू सर्व द एनवायरनमेंट। ये जो मतलब हमेशा अपने जो आस पड़ोस है, मैं जिस एनवायरनमेंट में रहता हूँ उसको सर्व करने का जब इच्छा प्रबल रहेगा, तो वो दिखेगा, वो अपने आप प्रकाश होगा और लोग आपके साथ में आकर के जुड़ेंगे। बोल रहे ठाकुर, আর লোক তা যত দেখে ততই মুগ্ধ হয়ে যায়, ভাবে এর ভিতরের ঐশ্বর্য তো অফুরন্ত, অথচ এ তো
निरंकार ओ निरभिमान। मतलब लोगों को ये जो आपका चाल चलन अगर उस तरह का, हमारा चाल चलन अगर उस तरह का रहेगा, तो लोगों को वो ऑटोमेटिकली दिखेगा, वो देखने में आएगा, और फिर लोग आपको श्रद्धा करेंगे। यही देखे सत्ता संवर्धना रसद पाবার आशाয় মানুষ भिड़े तार काछे। मतलब ये जो सत्ता संवर्धना, सभी के अंदर जो एक सत्ता है, लिबिडो जिसको कहते हैं, एक ईश्वर का वास है, निवास है, तो आदमी जब वो चीज देखेगा, तब मतलब उसके श्रद्धा, उसके जो अ, अ, उसका जो भगवान का वास है, जिसको लिबिडो बोलते हैं, तो उसको, उसका जो रसद, मतलब उसके लिए लगने वाला, जैसे हमारा पेट भरने के लिए खाने का जरूरत होता है, प्यास लगने से पानी का जरूरत होता है, ऐसे हमारा, हमारे अंदर जो सत्ता है, उसका पोषण जब होगा, उसको पोषण करने का जो रसद है, जो सामान लगता है, वो जहां वो पाएगा, तो वहां पर वो जुट जाएगा। बोल रहे हैं, গাছ লতায় বসে থাকলেও লোক এসে ছেকে ধরবে তোমাদের। बोल रहे हैं कि तुम एकदम जंगल के अंदर भी बैठे हो, तब भी लोग तुम्हें ढूंढ करके तुमको आकर के पकड़ेंगे। प्रकृति यदि हो, प्रकृति प्रकृति তোমাদের जयगान করবে। प्रकृत मतलब एक्चुअल, रियल। अगर तुम्हारे अंदर वो रियलनेस है, अगर प्रकृत हो, तो प्रकृति तुम्हारा जयगान करेगा। भावनार किचु नहीं, लॉक नॉक इट एंड इट विल ओपन। मतलब सिर्फ टैपिंग करने की जरूरत है और दरवाजा खुलेगा। ठाकुर जी का, अभी यही बात मैं 2 दिन पहले हमारा यादव, काय बोला? ठाणेचा ठाण्याचा यादव, रतन, रतन, ये रतन, हमारा एक गुरु भाई है थाने में, उसको मैं वही बात बोल रहा था। एक वीडियो गेम आता था पहले के जमाने में, मतलब आज से शायद 15-20 साल पहले लोग बहुत उसको खेलते थे। उसमें ब्रिक्स रहता था और नीचे एक कैरेक्टर रहता था। वो कैरेक्टर को हमको क्या करना होता था कि वो कैरेक्टर को आगे बढ़ाना और जंप कराना। ये दो, आगे पीछे और जंपिंग, ये दो उसमें ये चीज होता था। तो उसको वो जब जंप करता था और ब्रिक्स को हिट करता था, तो जहां जो पॉइंट्स है वो निकलता था। तो किसी में 500 पॉइंट, किसी में 200 पॉइंट, किसी में 1000 पॉइंट्स ऐसे निकलता था। तो हमको भी वैसे ही टैपिंग करना है, नॉकिंग करना है। यहाँ पर ठाकुर जी बोल रहे हैं, नॉक एंड इट विल ओपन। मतलब हमको सिर्फ जाकर के थोड़ा सा धक्का देना है, थोड़ा सा नॉक करना है। तो ठाकुर जी के लोग बैठे हुए हैं, तो हम जब वो जो नॉकिंग करेंगे, तब दरवाजा जरूर खुलेगा। मतलब 10 में से आप नॉक करेंगे तो 8 दरवाजा जरूर खुलेगा। तो ये ठाकुर जी की बात है। और ठाकुर जी ने एग्जाम्पल दिया है यीशु ख्रिस्ट का। तो उनके साथ में जो लोग थे, वही उनको ही लेकर के उन्होंने काम शुरू किया। और कृष्ण भगवान की बात भी बोल रहे कि उनके जो संगी साथी थे, वो सब कौन थे? वो सब गाय चराने वाले चरवाहे थे। लेकिन ठाकुर जी फिर बोल रहे कि भक्ति, विश्वास और चरित्रेर संपद, मतलब चरित्र का संपद, ये रहने से ही साधारणराई असाधारण होए दाड़ाए। मतलब ये जब रहेगा, भक्ति, विश्वास और चरित्र का संपद जब रहेगा, तब साधारण लोग भी, मतलब आम लोग भी खास होकर के खास हो जाएंगे। तो जो मैं समझा, मैंने रखने के लिए कोशिश किया है।
सबको जय गुरु। शशिकांत भाई आप इसको आगे लेके जाइए। जय गुरु। जय गुरु। थोड़ा सा मेरा चश्मा मिल नहीं रहा था तो मनीष दा, तो मैं पढ़ने के लिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। मुझे थोड़ा लास्ट लाइन पढ़ के सुनाइए। हाँ, ये कहाँ से बोलो? ये जो केशव ठाकुर ना, हाँ, हाँ। যিশু খ্রিস্ট কয়েকজন জেলে মালো নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। কেষ্ট ঠাকুরের প্রথম সঙ্গী সাথী ছিল সব রাখাল বালক। ভক্তি, বিশ্বাস ও চরিত্রের সম্পদ থাকলেই সাধারণরাই অসাধারণ হয়ে দাঁড়ায়। तो जो यीशु ख्रिस्ट का बारे में बोला गया यहाँ पर ना, यीशु यीशु ख्रिस्ट। ख्रिस्ट और हाँ, यीशु ख्रिस्ट और कृष्ण भगवान के बारे में बोला, श्री कृष्ण के बारे जय गुरु। खूब सुंदर विषय, और मैं सोमनाथ दा और मनीष दा को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये एक प्रयास है और हेल्प करेंगे। और ये जो अभी बोल रहे थे जे डेली ज्वाइन करने का चीज है, यहाँ पर एक कंटिन्यूटी नहीं रहेगा तो काम बनता नहीं। तो मुझे अभी डिपेंडेंस भी है और लर्निंग भी बहुत फास्ट में करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी का बातें को जानने के लिए उनका भाषा भी जानना चाहिए। और मेरा सुविधा के हिसाब से जो मेंटल मुझे सिग्नल देता है, जे बंगाली में दिक्कत होगा तो जो अनुरूप बाकी सब ग्रंथ है उसको पढ़ लें और उसको छोड़ दें। उसी कारण हम लोग ठाकुर जी का भावधारा भी जान नहीं पाते हैं कंप्लीटली, ठाकुर जी क्या चाहते हैं। आज का जो विषय वस्तु बहुत सुंदर विषय वस्तु है। ये विषय वस्तु जो है आपका कैरेक्टर बिल्डअप के ऊपर है पूरा देखा जाए तो। और कोई दादा माँ लोग हैं आलोचना रखना चाहेंगे? जोत्सना अग्रवाल माँ है। जोत्सना माँ कुछ आलोचना रखेंगे? ये हमारा विजयदा, प्रोफेसर विजयदा शायद हैंड रेज किए हैं, आलोचना रखना चाहेंगे तो करिए। विजयदा। जय गुरु दादा। हाँ, जय गुरु। ये तो ठाकुर जी कई बार बोले हैं, मनुष्य का कैसा आचरण व्यवहार हो। अगर किसी कोई भी आपसे प्रभावित होगा या आपका व्यवहार इस तरह से होना चाहिए कि लोग आपसे मिलने के लिए ललायत रहें, आपसे बात करने के लिए इच्छुक रहें। मन के एक रोल मॉडल जो होता है ना, जैसे मुझे किसी से अगर बात करने में अच्छा लगता है, या जो व्यक्ति मुझे अच्छे लगते हैं, क्यों लगते हैं? क्योंकि जो उनका आचार व्यवहार है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मुझे पार्टिकुलरली मुझे तो ये प्रभावित करता है जिसका अंदर बाहर एक हो। मैं एक एग्जाम्पल जस्ट देता हूँ, एक दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मैं फैमिली के साथ गया था मुजफ्फरपुर सत्संग बिहार। वहाँ जो है हम लोगों ने सुना है कि वहाँ ठाकुर जी का जो है खड़ाऊं रखा हुआ है। तो हम लोग को देखने की बहुत इच्छा हुई। ठाकुर जी का जो खड़ाऊं पहनते हैं तो वहाँ रखा हुआ है। तो कोई तो पहचान नहीं, पहले मैं सोचा कि पैसे कैसे जाऊं, कहाँ जाऊं। मैंने ऐसे गुरु भाई लोगों को फोन करके वहाँ का एक ऋत्विक दा का नंबर मिला मुझे, तो मैं गया। तो मेरे जाने के पहले वो ऋत्विक दा जो हैं वहाँ उपस्थित थे। हम लोग गए, उन्होंने बहुत अच्छा वेलकम किया, और जो है हम लोग बैठे, ठाकुर जी की चर्चा हुई। उसके बाद जो इवनिंग प्रेयर हुआ।
ये सब ठीक है, ये सब नॉर्मल बातें हुआ। जो मुझे जो ज्यादा इम्पैक्ट किया कि जो जब मैं वहां से निकला तो उन्होंने जो है मुझे अपने गाड़ी से जो है बस स्टैंड तक आए, अपने गाड़ी में बस स्टैंड में गाड़ी में चढ़ा दिया पटना के लिए, क्योंकि मेरे लिए वो नया जगह था और रात भी हो गई थी। अब रात हो गई थी, मेरे लिए नया जगह था, ऐसे वो नहीं आते, उन्होंने अपनी स्वेच्छा से किया। ऐसे हम लोग तो कैसे करके चले ही जाते, लेकिन ये मेरे होल लाइफ के लिए इम्प्रेशन हो गया उनका मेरे प्रति और मेरा उनके प्रति। ये जो एक्ट किया उन्होंने, है ना, तो उनके लिए मेरे भाव अभी परमानेंट मेरे होल लाइफ में रहेगा, है ना। और मैं दूसरा के एग्जाम्पल देता हूँ। एक जगह मैं इस पटना में ही गया था, तो ऋत्विक दा ने जो है वो अच्छा ठाकुर चर्चा किए सत्संग, और मैं सोचा कि मैं उनसे परिचय बढ़ाऊं। फिर वो होने के बाद जो है मैं बाहर हुआ, प्रसाद वितरण हो रहा था। अभी मैं वहां गया, मैं सोचा उनसे थोड़ी बातचीत करूं, अपना परिचय दूं। तो मैंने जय गुरु बोला, और बात बढ़ाने के लिए मैंने बोला कि जो दादा आपका अच्छा ठाकुर चर्चा हुआ है, सब मैं थोड़ा बात करना चाह रहा था। तो वो अनरिएक्टेड हो गए, वो कुछ पता नहीं बोले नहीं, कुछ नहीं, न पूछे आप कहाँ से आए सर। तो मेरा एक मनोबल गिर गया। तो कहने का मतलब जो अंदर बाहर एक है ना। अभी हम तो खूब ठाकुर का चर्चा की है, और फिर बाद में हम उस तरह से हम व्यवहार नहीं पाए। तो दो एग्जाम्पल मैं आप लोगों के प्रस्तुत किया, मत इस तरह से। जो तो ठाकुर जी वही बोलते हैं कि जो आपका व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि जो लोग इम्प्रेस हो। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आपके व्यवहार देख के ही लोग जाजित होंगे, है ना। आप कितना भी अच्छी अच्छी बातें बोले, ठाकुर की चर्चा करें, लेकिन उसका इम्पैक्ट कम होगा। लेकिन जब आपके जो आचार विचार देखेंगे, अंदर बाहर देखेंगे, आप तो बहुत बड़े भाषण दे रहे हैं, जब आप उनके साथ प्रैक्टिकली जब नजदीक से फॉलो अप करेंगे, उनके घर जाएंगे, तो लगेगा कि ये तो बहुत डिफरेंस देखा है। जो वहाँ जाजन करते हैं वो अलग ही दिखते हैं, और जो है पर्सनली जब मिलते हैं कुछ अलग ही इम्पैक्ट होता है। तो इस तरह से जो है मेरा इम्पैक्ट बहुत कम हो जाता है। तो जो है मैं मेरे भी ओवरऑल भाव मुझे यही लगा दादा। जय गुरु। जय गुरु। प्रोफेसर विजेता उनका व्यक्तिगत जीवन का कुछ उदाहरण दे के बता रहे थे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव दोनों उदाहरण दिए, जे मनुष्य का साथ कैसे जो इम्प्रेशन बा श्रद्धा जो इंटरेस्ट जगाना होता है, खुद का व्यवहार चाल चलन और श्रद्धा विश्वास, ये सब बातें जहाँ पर रहता है मनुष्य प्रभावित होता है। साधारण भाव से तो नहीं होता है। इसी संबंध में विकास भाई कुछ आलोचना रखना चाहते हैं? विकास पगड़ा भाई। जय गुरु दादा। जय गुरु। नहीं, आप आलोचना कीजिए आज। ठीक है। लाइन बाय लाइन तो मैं अभी एग्जैक्टली पढ़ के कर नहीं पाऊंगा, मुझे थोड़ा जुकता फिर का इश्यू आ रहा है। फिर भी मैं जो सोमनाथ दा और मनीषदा से सुना हूँ, उस हिसाब से मैं कुछ ट्राई करूंगा आज आलोचना रखने के लिए। श्री ठाकुर बोले जी, प्रत्येक एरिया जो है वहां पर 2-4 जन लोग परोपकारी होते हैं। और थोड़ा म्यूट कर लीजिए।
विकास भाई म्यूट कर लीजिए। तो यहाँ पर श्री श्री ठाकुर जी का जो बातें रखे हैं श्री श्री ठाकुर, जो हर एरिया में कुछ काम करने के लिए कुछ भले लोग, अपरोपकार लोग रहते हैं, तो उनको ढूंढना होता है। सेवा के माध्यम से, व्यवहार चाल चलन के माध्यम से बातें हैं जो हम लोग जितना लोग से मिलते हैं परिवेश में, हमारा जो निकटतम परिवेश में हम लोग रहते हैं, वो लोग सारे कुछ ऑब्जर्व करते हैं, जो ये व्यक्ति कैसा है। हमारा कमेटी में 10 लोग हैं, किसका क्या कैरेक्टर है बाद में जाके लोग आलोचना भी करते हैं। तो वही उसके ऊपर श्री ठाकुर जी ध्यान दे रहे हैं कि तुम्हारा जो बोलना और चलना बातें, कल मैं जैसे तुम्हारा एवरी वाक्य जो होता है, जो तुम्हारा मुंह से निकल रहा है, वो जो शब्द ब्रह्म है, उसी से लेके लोग प्रभावित होते हैं। कल तेलंगाना बैठे हैं तो एक माँ आके बादलापुर से वो सोनी माँ जो वो उनका वो पूछ रहे हैं, जो मुझे बोले शशि भाई ये क्या जो डीपी वर्क हो रहा है उससे क्या सारे समाधान होगा? तो देखो क्वेश्चन एक ही है, वो की है। और आपका जो चिंता श्री ठाकुर जी इधर क्या बोल रहे हैं? श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि श्रद्धा, विश्वास, चाल चलन, व्यवहार, इसी तुम्हारा संपद है। तो तुम्हारा तुम्हारा कॉन्सेप्शन, तुम्हारा परसेप्शन, तुम्हारा श्री ठाकुर उनको के प्रति श्रद्धा निर्णय करता है तुम उसका क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे। तुम कॉम्प्रोमाइज वे में दोगे कि 2-4 लोग को खुश करने के लिए दोगे, कि ठाकुर जी का प्रेम, ठाकुर जी के प्रीति में जो ठाकुर जी के साथ तुम्हारा जो संबंध है, रिलेशन, उसी हिसाब से दोगे। वो डिपेंड करता है तुम्हारा जो अभी मनीषता बोलते हैं, सोचना, बोलना और करना। जैसा सोच उसी हिसाब से शब्द आता है। देखो जिस लोग को परखने का यही एक तो चीज है, जो जैसे सोचता है उस मुंह से ऐसे निकलता है उसका, और वो निकलने के बाद उसका जो कार्यक्रम, क्रिया प्रक्रिया रहता है, कार्य भी उसी हिसाब से होता है। तो मुझे जो प्रत्येक क्वेश्चन श्री ठाकुर जी को पूछा जाया था, कहीं पे देखे हो ठाकुर जी का बातें उधर उधर, हर जगह में 22 खंड तक हम लोग पहुंचेंगे। अभी 4th वॉल्यूम खत्म हुआ है लीला में। तो मैं मेरा परिवेश में मुझे जब सुजग मिल रहा है, मैं क्यों नहीं करूं? कल मैं वही बातें भगवत पाटिल दा को बोल रहा था डीपी वर्क में, उनका लीला अनवरत चल रहा है। उनको एक लीला दिखाया तो ठाकुर जी का, बोले ठाकुर जी का लीला आप समझ में पा रहे हैं ना? हंसे जोर से। बोले एवरी टाइम उनका लीला चल रहा है, बट मैं उनके साथ ट्यून रहूंगा, देन मेरे मेरे मेरा चाल चलन व्यवहार सब इष्ट को परिपूर्ण करेगा। माँ जो पूछे तो मेरा व्यवहार से मैं उसको ठाकुर जी के प्रति कैसे आकर्षित कर पाऊं? वही सर्वसम्मत का समाधान, जानिता इष्ट प्रतिष्ठान। और ठाकुर जी का इष्ट प्रतिष्ठान तब होगा जब मैं ठाकुर जी के साथ अटैच रहूंगा। और अटैच रहने का प्रक्रिया है दीक्षा। डीपी वर्क मतलब दीक्षा को पालन करना। सिंपल में कोई पूछे मुझे, मैं यही बताऊंगा। तो बाद में कामेश्वर भी ज्वाइन की। तो डीपी वर्क्स का सारमर्म जो है, निचोड़ है, वही है जब व्यक्तिगत रूप से दीक्षा पालन करना, और वही दीक्षा पालन करते करते बाकी लोग को साहाय्य करना, उनको इंस्पायर करना, प्रेरणा देना, जो ईश्वर का पथ में। श्री ठाकुर जी वही बोल रहे हैं, जो तुम जहां पर भी जाते हो, तुम्हारा चाल चलन और व्यवहार के द्वारा बाकी को लोग को आकर्षित करो। जे ये दीक्षा पालन करके आप 15-20 साल में भी अमीर हो सकते हो। जो ठाकुर जी का जो बातें है वो तो मिथ्या नहीं है, बट वो जो कोई भी निखुण रूप से वो पंचनीति पालन करके बिजनेस, वो कहाँ तक पहुंच जाएगा। तो अभी सोचा, तो मैं देखता हूँ हमारा चेयरमैन जी का जो डिसीजन अभी सोचे तो अभी कर लेते हैं।
बट सेम चीज तो श्री ठाकुर जी सोचते में बोले जे जीवन बुद्धि तक कोई भी सचिंता आता है उसको तुम्हारा शक्ति सामर्थ्य देके उसको परिपूर्ण करने के लिए। तो कोई व्यक्ति श्री ठाकुर जी को फॉलो नहीं कर रहा है पर पूर्वतन पुरुषोत्तम को फॉलो कर रहा है, तो उनका बातें को वो एक एक करके पालन करता है। तो जो बोलता है तो वो 100% उसको जी जान लगा के परिपूर्ण कर देता है। तो उनका बातों से और कर्मों में कोई डिफरेंस नहीं है। इसको बोलते हैं ऋषि वाक्य। ऋषि क्या जो जो बोलते हैं वही होता था, वैसा नहीं। ऋषि जो बोलते थे ना, ऋषि जो पानी मंत्र करके जो भी बोल देते थे, महर्षि व्यासदेव, वैसा नहीं होता था। ऋषि जो बोलते थे उसको करवाते थे। कैसे न खुद करते थे, नहीं तो किसी के द्वारा करवा देते थे। इसलिए उनका जो एक एक वाक्य है, जैसे श्री श्री आचार्य बोलते हैं, उनका वाक्य कभी अन्यथा नहीं हुआ। अन्यथा कैसे नहीं होगा? सपोज श्री श्री आचार्य मुझे बोलेंगे ये चीज करने के लिए, मैं नहीं करूंगा तो उनका वाक्य तो फिर मिथ्या हो गया। तो क्या ऋषि नहीं है? तो वही हुआ जो श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, जो एवरी वाक्य जो हम लोग बोलते हैं और हमारा जो करना में, उसमें भेद ज्यादा नहीं रहना चाहिए। तो दीक्षा पालन में शवासन आता है। जी पाटिल दाम में बोले मेरा बेटा जब अमेरिका से आते हैं तो ठाकुर जी का गृह में जाते हैं, तो वहां पर प्रणाम वगैरह करके मेरा से डेविएशन होता है, उससे नहीं होता है। तो ये जो एक एक बातें कल एक्सपीरियंस हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, डीपीआर का अर्थ क्या है। हम लोग डीपीआर काउंटर खोले तो डीपीआर का अर्थ है जो दीक्षा मैं पालन करता हूँ उसको मैं दूसरे से शेयर करके दूसरे को साहाଯ୍य करूं, तो उसको बोलो ये करने के लिए। ये जो श्री ठाकुर इधर बातें रखे हैं, समय तो है। हाँ, तो यहाँ पर जो बोल रहे हैं श्री ठाकुर जी, जे कोई चीज क्रिएट करने उसको मेंटेन करना, ये चीज नहीं तो तुम्हारा जमीन के पैर से, मतलब पैर जिसके ऊपर तुम खड़े हो, जो जमीन के ऊपर, वो फिसल जाएगा। तो वही कंटिन्यूटी का बात है। जो चीज हम लोग किसी को वादा किए हैं, जैसे कल मैं उदाहरण दे रहा था, ये तेलंगा, आप जब स्वास्थ्य खराब होता है आप बोलते हो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आऊंगा। चेष्टा तो शब्द वर्ड नहीं यूज करते, कभी चेष्टा करने के लिए बोलते हो तो फिर इंटीमेट करते हो। इसका मतलब हर व्यक्ति का आपका जो वाक्य है वो इसके लिए तो आपके आगे एक देव श्री ठाकुर जी देवता लगा के चले गए, ऋतिक देवता। हर कोई जानता है ऋतिक देवता, बट हर व्यक्ति ऋतिक क्या देवता है? नहीं हो पाता है, क्योंकि वही चाल चलन व्यवहार जब परिस्फुट होता है तो उसके लोग उसको देवता जैसे देखते हैं। तो श्री ठाकुर इधर जो वाक्य रखे हैं, जे मनुष्य के अंदर विथ ऑल अलर्ट इंगिजिस्टिनिस टू सर्व द एनवायरमेंट, ये अनुसंधित्सा हमारा एक्टिव अनुसंधित्सा रहना चाहिए। परिवेश में कैसे हमको सेवा देना है। कोई श्री ठाकुर जी जो अभी आलोचना कर रहे थे, विजयदा, सोमनाथ और मनीषदा, जे आपके प्रति मनुष्य का प्रेम कितना है उसी से पता चल जाता है जे तुम परिवेश के लिए कितना किए हो। तो परिवेश से जो प्रति एक्टिव इंगेजिटिवनेस रहना चाहिए। कल मुझे इतना आनंद मिला उत्सव में, उनका लीला इतना चलता था। तो मैं कल भगवत पाटिल दाऊ बोला था जी मैं इसको कहीं पे रिकॉर्ड करने से बेटर होगा, क्योंकि इतना सारा चीज जो श्री ठाकुर जी का लीला मेरे साथ प्रति के बाद चलता है, बट कोई उसको महसूस कर पाता है, कोई उसको महसूस नहीं कर पाता है। आप जितना ट्यून रहोगे उतना आप समझ में आएगा। ये जो फोरम में हमारा नीरज दा आज उनका पत्नी ज्वाइन की है कि नहीं मुझे देखा नहीं, वो सिंगापुर में रहते हैं और
भारत आए इंडिया और यहाँ पर मुंबई में कुछ टाइम के लिए, और कल जब निमंत्रण दिया गया था तो ओनली ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, अगर मेरा फ्लाइट रहेगा तो मैं तो व्यक्ति रूप में जाना मुश्किल होगा, 7 बजे होगा भी, फिर भी सुबह नहीं जाऊंगा। बदलापुर कितना दूर है, 2-2 घंटा का रास्ता होता है पलावा में मिनिमम। अभी जो ट्रैफिक है 4 घंटा, 1 घंटा देर स्पेंड करेंगे तो 5 घंटा चाहिए। वो कल आए और दर्शन किए, और ठाकुर जी का ये जो पारस्परिकता था, मैं उनके परिवार के साथ जुड़ा नहीं रहूंगा, वही जो ठाकुर जी बोलना चाहते हैं, जो तुम्हारा परिवेश के लिए कितना कर रहे हो, उसका रिजल्ट जो है वो आनंददायक है। वो आए कल, ठाकुर जी का प्रणाम किए और बोले मैं आपके साथ मिलना चाहता हूँ। कल मिले, मैं उनका जो ऋतिक अम्य बिंदु माझीदा के साथ बोला आप इतना देर से सिंगापुर से आए हैं तो उनके साथ एक फोटो खींच के जाइए। फिर ही अरेंजमेंट करके अम्योदा के साथ एक फोटो खींच के दिया। जे ये बोलने का रीजन है जे आपका परिवेश में आपका व्यवहार, आपका जो बातें, जो मैं बोलता हूँ ना कभी कभी, जो मैं रूसी हूँ, तो एक व्यक्ति मुझे बोले तुम क्या बोलने से रूसी हो जाओगे ना, बोले तुम वही श्री श्री ठाकुर जी का इष्टभूति का पहला पर्याय में जाइए, सोपान में सुबह क्या आप बोल रहे हो, ये रूसी का बात नहीं है। जी मैं कॉन्शियस हूँ, मैं परमानंद हूँ, मैं जाजन जैत्र हूँ, मैं जाजन को जय किया हूँ, मैं अक्रोधी हूँ, तो आपका कभी क्रोध नहीं करता, फिर कैसे श्री श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो वही प्रैक्टिस करते करते ऋषि तुम बन जाओगे। जो मैं जो बोला हूँ वो करके दिखाऊंगा। रात को प्रार्थना का समय होते आ रहा है। सपोज किसी को दायित्व दिए हो वो काम करने के लिए, वो किया नहीं, तो आप जो दायित्व लिए नहीं हुआ, तो उसको कैसे करवाना है, वो टेक्निक सीखना चाहिए। वही इसी से ठाकुर जी का जो बातें हैं हम कल आलोचना करेंगे। कल एक्टिविटी की वजह से थोड़ा सर्दी की वजह से गला भी खराब है, ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, और आज का विषय वस्तु को, आलोचना को यहाँ पर विराम देता हूँ। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तम। सबको जय गुरु। जय गुरु दादा। जय गुरु दादा। सबको जय गुरु। जय गुरु।